Assalamu alaikum, dear students and teachers. Inshallah, in this video, we will solve the exercise of the Mother Nature, a poem by Emily Dickinson. Okay, first, reading and critical thinking skills, reading comprehension questions. So, what is the central theme or message conveyed by Emily Dickinson in Mother's Nature? So, the main idea is that the nature is compared with a mother, a gentle mother, who is so much caring and kind and who lovingly takes care of all living things and brings peace and calmness to the world. How does the poet depict nature's actions during the time when all the children sleep? Following a nature's action, number one, she turns away. This means nature slowly moves as night begins. यानी वो चली तो जाती है लेकिन इतना दूर नहीं जाती है, बस इतना जाती है जितना ज़रूरत हो। शी लाइट्स हर लैम्प्स यानी वो स्टार्स को शाइन करती है स्काई आसमान में। शी बेंड्स फ्रॉम द स्काई और फिर आसमान में रह ही नहीं जाती बल्कि झुक के ख्याल रखती है किसका? अपनी क्रिएचर का। एक्सप्लोर द मेटाफोरिकल मीनिंग बिहाइंड द लाइन हर गोल्डन फिंगर ऑन हर लिप wills silence everywhere. What does it suggest about nature's role? Her golden finger on her lip, it means nature is gently asking for silence. It is the universal gesture for requesting silence. Wills means wishes, wants. So the nature wants everything to be quiet and silent at night so all living things can rest peacefully. Reflect on the use of nature elements, squirrel, bird, cricket, flower in the poem. How do they contribute to this overall message? Squirrel and bird, nature gently controls their wild behavior. Cricket is a small and shy insect. Nature gives it courage. Flower is also unimportant and the nature cared it. How do they contribute to the overall message? It contributes to the overall message by showing that nature cares for all living things like a kind mother. She helps the strong and the weak, the big and the small with love and peace. How does Emily Dickinson portray the duality of nature's character, gentle mother and enforcer of silence? यानी वो कह रहे हैं कि दो तरह के कैरेक्टर्स हैं, तो वो जेंटल सी मदर है और एक वो कह रही है चुप हो जाओ। इन्फोर्सर यानी कि ज़रा एक काम जो है वो हर हाल में करवा के छोड़ना। तो वो ये बता रही है कि नेचर एज़ बोथ जेंटल एंड स्ट्रॉन्ग, तो नेचर जेंटल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। जेंटल कैसे? कि जब वो ख़्याल रख रही है बड़ों का, छोटों का, बेकाबू गुलहरियों का, छोटे-छोटे परिंदों का, टाइनी क्रिकेट का, अनइम्पोर्टेंट फ्लावर का। साथ ही वो थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग है कि वो सबको कह रही है चुप हो के सो जाएँ। शी इज़ लाइक अ काइंड मदर हू केयर्स फॉर ऑल क्रिएचर्स विद लव बट एट नाइट she becomes quiet and asks for silence so everyone can rest. This shows nature's soft care and also her gentle control. तो बड़ी मोहब्बत के साथ वो कंट्रोल करे, जैसा कि हमने शुरू के स्टैंजा में देखा था कि एडमोनिशन के उसकी वार्निंग कैसी होती है, बड़ी सॉफ्ट सी होती है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रीड द गिवन पैराग्राफ एंड एग्जामिन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, मींस फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन नरेटिव, और फिर आपने बताने कि आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन नरेटिव को देखना है और फिर आपने ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू या उसका पर्पस बताना है और ये बताना है कि उसने किस तरह एनालाइज हाउ द ऑथर डिस्टिंग्विशेस हिज और हर पोजीशन फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स. ओके, सो लेट्स चेक. Okay. So here's the paragraph. Let me read it. The crisp autumn air nipped at my cheeks as I hurried down the street, a gnawing emptiness in my stomach. I hadn't eaten since breakfast and was running late for my part-time job. Just as I passed a small rundown cafe, a figure slumped against the wall caught my eye. It was an elderly woman, her face etched with worry, her hands shaking as she clutched a tattered bag. I felt a pang of sympathy, a tug on the heartstrings that I knew meant I should help, but I was already late and the little money I earned was precious. But as I glanced back at her, the image of my grandmother, frail and unsteady, flashed in my mind. The guilt was like a tight knot in my chest. I couldn't turn away. With a sigh, I dug into my pocket and offered the woman a few coins. Here, ma'am, I said, I hope this helps. As her eyes welled up with tears, I felt a warmth spread through me, a feeling that was bigger than the hunger in my stomach or the fear of being late. It was a reminder that kindness, even in small gestures, held a power that could feed the soul. From the window of the cafe, okay. क्या कहा जा रहा है कि जो मैं ये अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस पैराग्राफ यू कैन चेक दैट द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विच इज़ आई यू कैन जस्ट चेक दैट in this whole paragraph which I have just read, the author has used the first personal pronoun which is I. ठीक है कि मैं जा रही थी, मैंने एक खातून को देखा जो बड़ी बुजुर्ग सी थी और बड़ी उदास सी थी, तो मैंने अपने पर्स में देखा, मुझे हालांकि भूख भी लगी थी फिर भी मैंने थोड़े बहुत उनको कॉइन्स दिए और फिर उनको बहुत खुशी मिली और उनकी आंखों से आंसू भी आ गए, जिससे मुझे क्या फील हुआ कि चाहे थोड़ा सा भी कोई बंदा नेक काम करे तो उसको करना चाहिए. ठीक है, इट वॉज अ रिमाइंडर, ये मेरे एक रिमाइंडर था कि दैट काइंडनेस इवन इन स्मॉल
स्मॉल जेस्चर्स, कुछ कॉइन्स दिए थे ना मैंने, हेल्ड अ पावर दैट कुड फीड द सोल, ओके, यानी कि रूह की जो भूख होती है ना उसको मिटाने के लिए। लेकिन ना एक इंसानी भूख होती है जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, रूह की भी भूख होती है। तो रूह कैसे खुश होती है? जब हम रूह को सुकून देते हैं। तो रूह की भूख मिटाने का मतलब क्या है? रूह को सुकून देना। तो जब हमने कोई नेक काम किया तो नेकी से हमेशा हमारी रूह खुश होती है। Now, let's check the second paragraph. From the window of the cafe, Sarah, the waitress, watched the scene unfold. She'd witnessed countless acts of indifference on the street, people rushing by, blind to the struggles of others. But this young man, with his tired eyes and worn coat, had stopped. He hadn't had to, but he did. The kindness in his gesture was like a beacon of hope, a reminder that even in the darkest of times, compassion could still bloom. Sarah smiled, her heart warmed by the small act of human connection. She knew that kindness, like a ripple in a pond, could spread outward, touching lives in ways both big and small. अच्छा, अब ये सारा मंजर जो है ना, अब ये पहले क्या हो रहा है, आई का काम हो रहा है ना, कि आई मैं गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो फिर मैंने उसको, मुझे भूख भी लग रही थी, मैं लेट भी हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस खातून को पैसे दिए। अब ये सारा मंज़र कौन देख रहा है? कैफ़े से सारा देख रही है, ठीक है? अब यहाँ पे ऊपर भी आपको कैफ़े का ज़िक्र हुआ होगा ना कि रनिंग लेट आई पास अ स्मॉल रन डाउन कैफ़े, ऊपर यहाँ पे देखिए, जस्ट एज़ आई पास्ड अ स्मॉल रन डाउन कैफ़े, ठीक है ना? कि मैं कैफ़े के सामने से गुज़रा तो मैंने उस खातून को देखा, फिर मैंने पैसे दिए। अब ये जो सारा मंज़र है ना, कैफ़े के अंदर से सारा देख रही है, जो कि एक वेट्रेस है। उसने देखा कि एक आदमी रुका, हालाँकि वो बहुत जल्दी में था, आइडिया हो जाता है कोई बंदा तेज़-तेज़ चल रहा हो ना, तो आइडिया हो जाता है कि वो लेट हो रहा है, उसको कहीं पहुँचना है। तो वो रुका, उसने कोट की जेब में हाथ डाला, कुछ नोट कुछ निकाले, कॉइन्स निकाले, उस खातून को दिए, खातून खुश हुई। तो उसने देखा कि देखो अभी भी नेक लोग हैं, अपना काम छोड़ के दूसरों को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारा है, सारा की बात हो रही है, उसने देखा, सारा स्माइल्ड, हर हार्ट, यहाँ पर भी सब क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू हम देख लेते हैं कि द फर्स्ट पार्ट इज इन फर्स्ट पर्सन, द बॉय इज टेलिंग हिज ओन स्टोरी, एंड इन द सेकंड पार्ट इज इन थर्ड पर्सन, द वेटर टेल्स व्हाट सारा द राइटर टेल्स व्हाट सारा सीज एंड फील्स, ठीक है? ऑथर्स पर्पस क्या है? द ऑथर वांट्स टू शो दैट काइंडनेस इज पावरफुल एंड इवन अ स्मॉल काइंड एक्ट कैन ब्रिंग होप एंड हैप्पीनेस। डिफरेंट व्यूज क्या है कि पहले हमने क्या देखा, बॉय की फीलिंग देखी कि वो हंग्री था, लेट था, लेकिन फिर भी उसने ओल्ड वुमेन की मदद की। और फिर हमने सारा की फीलिंग देखी कि उसने बॉय को मदद करते देखा, उसने मदद करते देख कर सारा को खुशी हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो काइंडनेस होती है ना, दिस शोज दैट काइंडनेस कैन टच मैनी पीपल, नॉट जस्ट द वन वी हेल्प। के जो मदद होती है ना, ये जो रहम दिली होती है, उसका असर कई लोगों तक पहुंचता है, सिर्फ उस तक नहीं जिसकी हमने मदद की हो, और लोगों तक भी पहुंचता है। अब क्या एक्सरसाइज है? एंटोनिम, डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन। प्रोवाइड द एंटोनिम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। सो आप देख सकते हैं, जेंटलेस का हार्शेस्ट, इम्पेशेंट पेशेंट, टिमिड बोल्ड। टिमिड का मतलब क्या था? शाय सा, कमजोर सा, है ना? रैम्पेंट जो कि बेकाबू हो, तो उसका क्या हो जाएगा? कंट्रोल्ड। और इन्फिनिट का मतलब हो जाएगा फिनिट, सिंपल। प्रोवाइड द डेनोटेशन, हमने डेनोटेशन यानी डिक्शनरी मीनिंग बताने। एजल्स मीन्स पाथ बिटवीन रोज, असेंबली ग्रुप मीटिंग, लैम्प्स, और यू कैन चेक बाय योरसेल्फ, यानी कि सिंपल सिंपल सी चीज़ें आप इसको देख लें। अगली चीज़ क्या है कि अगेन चूज द एंटोनिम फॉर ईच वर्ड। अगेन आ गया कि आप ये जो असेंड है ना, इसके आगे दो लिखे हुए हैं, यानी कि ये जो आपको ये जो नज़र आया ना, ये वाला पिक्चर, ये वाला जो पिक्चर ऑफ द बुक आपको नज़र आ रही है, इसमें उन्होंने ABCDE लिखे हुए हैं ना, हर एक के आगे असेंड, एक्सपैंड, कंकर, सरेंडर, इंटेंस लिखा हुआ है। तो हर वर्ड के आगे दो बॉक्सेस है, हमने सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो असेंड का होता है डिसेंड, हमने एंटोनिम बताने हैं, ठीक है? एक्सपैंड का है कॉन्ट्रैक्ट करना, कंकर यानी फतह करना, इसका है सरेंडर, यानी हार मान लेना, शिकस्त मान लेना, शिकस्त तस्लीम कर लेना। अच्छा जी, और सरेंडर का क्या है? सॉरी, अच्छा, सरेंडर सी का कंकर था, डी का है प्रिमिटिव, उसका है मॉडर्न। या अगर आप सरेंडर का करेंगे, अच्छा, प्रिमिटिव का मॉडर्न है, ये थोड़ी सी चीज़ें गलत भी हो जाती है समटाइम्स। और इंटेंस का है माइल्ड, ठीक है? ओके, प्रिमिटिव का मतलब होता है कदीम, और मॉडर्न का होता है जदीद। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, जब आप बच्चों को कराएं, या अगर आप खुद बच्चे हैं तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, पेपर में कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि सरेंडर लिखा हुआ हो और आगे मॉडर्न और प्रिमिटिव हो। प्रिमिटिव का मतलब कदीम होता है, मॉडर्न का जदीद होता है। तो या तो आप डी में मॉडर्न लिख लें या प्रिमिटिव लिख लें, और उसको उस लिहाज से कर लें, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने समटाइम देखें एरर हो जाती है इंसान से, कोई ऐसा नहीं है।
चूज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस है और हमने नीचे बॉक्स में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने सिलेक्ट करना है कि क्या चीज़ है। तो पहला क्या है, द सनसेट्स पेंटिंग द स्काई इन विविड कलर्स आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइट, कि ये एक कॉमन बात नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात है। फिर दूसरी की चीज़ है, हिज पेशेंस सीम टू डिक्रीज एज द वेट बिकेम लॉन्गर। तो पेशेंस क्या हो रहा है, द हिज पेशेंस सीम टू, सॉरी यहाँ पे हिज पेशेंस सीम टू इंक्रीज होना चाहिए एज द वेट बिकम लॉन्गर, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, पेशेंस क्या हो रहा है कि उसका जो सब्र है ना वो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो हम इसको करेंगे इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज नहीं आएगा, इसको हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे इंक्रीज, और यहाँ पे ई को छोटा कर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसका जो सब्र है ना वो, नहीं सॉरी 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 गलत हो गया, सब्र कम ही होता जाता है ना, सब्र बढ़ता थोड़ी जाता है, सॉरी सॉरी, सब्र तो कम हो रहा है ना, उसका सब्र क्या, हम क्या, हमारा सब्र का पैमाना ख़त्म होता जा रहा है, मेरा सब्र अब ख़त्म हो रहा है, तो ये ठीक था। सॉरी, इसको हम बस स्मॉल कर देते हैं डी को, बाकी ठीक है, डी ही आएगा। ठीक है, डिक्रीज ही आएगा, क्योंकि सब्र क्या हो रहा है, मेरा कम होता जा रहा है, और मैं जो मुझे इंतज़ार करना पड़ा है, मेरा सब्र कम होता जा रहा है, मेरी बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, हम कहते हैं ना, ये वो वाला डिक्रीज़ है। फिर रिवर फ्लोट जेंटली इज़ करंट काम एंड सीरीन, वो जेंटली रिवर जो है वो बह रहा है और बड़ा काम और सीरीन सा है, यानी बड़ा ही ज़बरदस्त सा, और सीरीन भी मतलब बल्कि जो आराम से एक हो, बड़ा ही पुरसुकून सी एक चीज़ हो ना, वो सीरीन होता है। टर्बुलेंट का मतलब होता है तेज़ या तूफ़ानी, और करंट का मतलब होता है यानी बहाव। और ये मुश्किल वर्ड्स थे, उनके हमने थोड़ा सा इसके वर्ड मीनिंग है ये। ठीक है, अब नंबर डी देख लेते हैं। इन द डेजर्ट द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे कैन बी एक्सट्रीम रीचिंग ओवर 100 डिग्री, तो यहाँ पे एक्सट्रीम आएगा, ई को छोटा कर देते हैं, ई को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, अब सही है। और यहाँ पर हम इसको एम्प्टी का ई भी छोटा कर देते हैं, नाउ इट्स फाइन। ठीक है, तो द पॉलिटिशियन स्पीच वॉज फिल्ड विद एम्प्टी प्रोमिसेस, सिर्फ खाली बातों से भरी हुई है। मेटाफर क्या होता है कि हम दो चीज़ों को कंपेयर करें विदाउट यूजिंग एज और लाइक, जैसे इफ़ आई से यू आर अ लायन और यू आर अ रोज टू मी, आप मेरे लिए फूल हो या आप एक शेर हो, तो मैंने आपको कंपेयर किया लायन से या फूल से विदाउट यूजिंग एज और लाइक, सो दिस इज मेटाफर। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है और हमने इन पे मेटाफर लगाया, तो टाइम इज अ रिवर, टाइम इज अ, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर या माउंटेन, हमने सुटेबल लगाना है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा चॉइस है, तो हमने इस पर सुटेबल चीज़ लगाना है, तो टाइम इज अ रिवर सही आंसर है। लॉफर इज अ मेडिसिन है, क्लासरूम वॉज अ हाइव ऑफ बजिंग बीज, बीज के साथ हमेशा हाइव आता है, फॉरेस्ट नहीं आता, याद रखें, यानी छत्ता। ठीक है, और जो उसके वर्ड्स हैं वो क्या है, एंकर इन द स्टॉर्म ऑफ कन्फ्यूजन, एंकर का मतलब होता है लंगर अंदाज होना, तो यहाँ पर ज़्यादा जो सूटेबल चीज़ है ना वो आपने लगानी है। अगली चीज़ है मेटाफर क्रिएट करना है हमने, तो कंपेयर द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट टू अ ब्रोकन मिरर, वो कह रहे हैं कि जहाँ पे कुछ हमें सेंटेंस में कुछ बातें दी गई हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं, हमने उनको किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना है कि एक अच्छी सेंस बने। जैसे डिसअपॉइंटमेंट को, मायूसी को हमने कंपेयर किया ब्रोकन मिरर से, सक्सेसफुल टीम को कंपेयर किया स्ट्रॉन्ग चेन से, जैसे एक चेन मजबूत होती है ना, किसी रस्सी की कड़ियाँ या किसी चेन की कड़ियाँ एक दूसरे में पिरोई होती हैं, इस तरह एक मजबूत टीम होती है। सक्सेसफुल टीम को हम फ्यूल्ड रॉकेट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, इसी मतलब सिमिलरली नाइट स्काई को हम कर सकते हैं। यहाँ पे चूँकि उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है डैश ऑफ डायमंड्स, तो हम क्राउन ऑफ डायमंड्स भी कर सकते हैं, और ब्लैंकेट ऑफ डायमंड्स यानी कि हीरो का कंबल, हीरो का ताज तो भी हो सकता है, और हीरो की चादर भी हो सकती है। सो इट्स बेटर कि आप क्राउन ऑफ डायमंड्स करें। ठीक है, फिर अगला है कि एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ करेज यूजिंग द मेटाफर ऑफ अ लायन। फिर क्या है कि आइडेंटिफाई द मेटाफर इन द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो हमने इसमें से बताना है, ऑप्शन दिए हुए हैं कि द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर थ्रू द स्मॉल टाउन, ये आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि न्यूज़ मेटाफर है या वाइल्ड फायर मेटाफर है, तो सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आप खुद नजर आ रहा होगा, वाइल्ड फायर, म्यूजिक, स्लीप्स एंड थीफ, यू कैन चेक। फिर है पर्सोनिफिकेशन, हमने पर्सोनिफिकेशन ढूंढना है, दो ऑप्शन दी हुई हैं कि स्टार्स है या मिडनाइट है, तो स्टार्स है, क्यों, द स्टार्स डांस इन द मिडनाइट स्काई, कि स्टार्स को यानी कि आइडेंटिफाई द पर्सोनिफिकेशन, अव्वल तो डांस होना चाहिए ना, कि डांस इज अ क्वालिटी गिवन टू द स्टार्स, लेकिन ऑप्शंस जो दी हुई ना स्टार्स एंड मिडनाइट, तो अगर हम इन ऑप्शंस में से देखें तो इन ऑप्शन में से स्टार सही बनता है। ठीक है, तो विंड है, सन है और टाइम है।
अगला है क्रिएट पर्सोनिफिकेशंस। हमने गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू द रेन। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि हमने इसको ह्यूमन क्वालिटीज देनी है। तो रेन को हम कह सकते हैं नॉक जेंटली ऑन द विंडो। फिर माउंटेन वॉचेस ओवर द लैंड स्टैंडिंग टॉल एंड प्राउड। ये सब हम क्या है, माउंटेन्स को ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हैं कि वो टॉल खड़ा है, प्राउड है, बड़ा है, यानी कि इंसानों वाली क्वालिटीज़ है ना, और वो दूर से ना ख्याल कर रहा है सारे अपनी ज़मीन का। The moon whispered to the stars, telling them to twinkle gently in the quiet night. Depict a river as if it has thoughts and feelings. So river wondered where it would go next. River सोच रहा है कि मैं अब कहाँ जाऊँ, या river is thinking about its final destination, और river सोच रहा है मेरी मेरी आखिरकार मेरी मंजिल क्या होगी। तो हम इसमें थिंकिंग की और थॉट्स की एबिलिटी दे रहे हैं। अब हमने पर्सोनिफिकेशन बतानी है कि इस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन क्या है। तो ग्रोन्ड नोडेड का मतलब होता है सर हिलाना। नॉक्ड ऑन द डोर, फियर नॉक्ड ऑन द डोर। खौफ ने दरवाजे पे दस्तक दी, बट करेज आंसर्ड, लेकिन जवाब दिया हौसले ने। बहुत ज़बरदस्त ये लाइन है। द कैमरा कैप्चर द जॉय ऑफ द मोमेंट। ओके, कैमरे ने पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। इसमें क्या होता है कि हम सेम कॉन्सोनेंट साउंड या सेम साउंड जो है वो लेटर के स्टार्ट में हो, जैसे बिग, ब्लैक, बेयर, ठीक है, जब फिशिंग फ्लीट, फ या जो सारी चीज़ें क्या है लेकिन जैसे अब अगर हम यहाँ पे देखें ना, जैसे फिशिंग फिशिंग फ्लीट क्या है, एलिट्रेशन है, जो कि सेम वर्ड्स हैं और सेम साउंड्स हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड कि ये जो चीयरफुल कॉप है ना, चीयरफुल कॉप यानी कि एक बड़ा ही हंसी मजाक वाला पुलिस वाला, ये है तो सी से, लेकिन इसका साउंड सेम नहीं है, च एंड ख। उसका मतलब है ये एलिट्रेशन नहीं है। तो हमने क्या देखना है, साउंड देखा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमने साउंड देखना होता है एलिट्रेशन में। अब फिर द ब्लैंक्स करने हमने। The dash alliterative adjective eagle soared through the sky, that is या for example elegant। तो यहाँ पे alliterative adjective होता है। एडजेक्टिव कहते हैं ना कि क्वालिटी ऑफ नाउन, तो एलिटरेटिव एडजेक्टिव होता है कि नाउन से पहले वो वर्ड एडजेक्टिव का लगाएं जिसका फर्स्ट वर्ड वही हो जो कि नाउन का है। जैसे ईगल नाउन है ना, हमने से पहले एडजेक्टिव लगाना है कोई, तो हम वो एडजेक्टिव लगाएंगे जिसकी साउंड ई ही हो या अ ही हो। तो हमने एलिगेंट ईगल लगा लिया, ये एफिशिएंट ईगल लगा लिया। सेकंड क्वेश्चन है कि वेव्स है, वेव से पहले हमने कुछ लगाना है, तो डब्ल्यू से शुरू हो तो वाइल्ड भी ठीक है, विस्परिंग भी ठीक है। फिर टीचर से पहले कुछ लगाना है जो कि ट से शुरू हो यानी टी से, तो टायरलेस भी ठीक है, टॉल भी ठीक है। अब हमने बताना है अंडरलाइन एलिटरेटिव वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर ये सारी पिक्चर दी हुई है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे एलिटरेटिव वर्ड्स कौन से। तो 5 फीस्टी फिलीन्स फ्रॉलिक्ड ये है, और फिर बिजी बीज बर्ज अराउंड द ब्लूमिंग फ्लावर्स। तो ये सब क्या है, एलिट्रेशंस हैं। अगली चीज़ क्या है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। हमेशा याद रखें कि ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं कि ट्रांजिटिव होते हैं जो कि जिनका वर्ब या जो एक्शन है ना वो आगे ऑब्जेक्ट तक जाता है, या हम कह सकते हैं कि इनको हर हाल में एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस में वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो तो वो ट्रांजिटिव होगा, और अगर सेंटेंस में वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या तो एडवर्ब है या कुछ भी नहीं है तो वो क्या हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि आइडेंटिफाई हमने करना है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को। शी एट द डिलीशियस केक, तो यहाँ पर तो वर्ब है एट और उसका ऑब्जेक्ट है डिलीशियस केक, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव है। द कैट जम्प ऑन टू द विंडो सिल, तो ये इनट्रांजिटिव है चूँकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, या ये हमें बता रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है कि कैट ने जंप की कहाँ पे की, विंडो सिल पर, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ही बिल्ट अ सैंड कैसल ऑन द बीच, तो ये ट्रांजिटिव है चूँकि यहाँ पे द वर्ड बिल्ट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ सैंड कैसल, ठीक है। तो यहाँ पर सैंड कैसल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड ऑन द बीच क्या है, एडवर्ब है, लेकिन चूँकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दैट्स वाई ट्रांजिटिव। अगर सिर्फ होता ना चलें फॉर एग्जाम्पल होता है ही स्लेप्ट ऑन द बीच, कि वो बीच पर सोया, तो फिर हम कहते हैं इनट्रांजिटिव है। तो हमने गौर करना है कि क्या ऑब्जेक्ट है या नहीं, ओके। सो यहाँ पे ही बिल्ट अ सैंड कैसल, उसने एक रेत का महल बनाया कहाँ पर, बीच पर, तो ये ट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पर
ऑब्जेक्ट है सैंड कैसल। द रिवर फ्लोट स्विफ्टली, तो ये भी इंट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब आ रहा है। फिर म्यूजिक प्लेड सॉफ्टली, अगेन जो इंट्रांजिटिव है। सारा बॉट अ न्यू ड्रेस, तो न्यू ड्रेस जो कि ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ट्रांजिटिव है। अब हमने ऑब्जेक्ट बताना है, बुक है, लीव्स है, लेटर है एंड फेंस है, ये सब ऑब्जेक्ट्स है। बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला काम है। अब हमने दो तरह के से हमने क्या बनाने सेंटेंस, एक ट्रांजिटिव वर्ब से बनाना है, इंट्रांजिटिव से बनाना है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूजिंग ट्रांजिटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूजिंग इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने दोबारा लिखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसके बाद नाउन आता है। ठीक है, और इंट्रांजिटिव की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसके बाद एडवर्ब आता है। तो फिर हम कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो हमने बना लिए दो सेंटेंस जिसमें पहले ट्रांजिटिव के बना लेते हैं। ठीक है, शी किक द बॉल, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब इंट्रांजिटिव वर्ब बना लेते हैं सेंटेंसेस जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हो। ही स्लीप्स पीसफुली, ही सिंग्स नाइसली। अब इंटरोगेटिव विद ट्रांजिटिव वर्ब, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, और डज ही सिंग अ सॉन्ग। और इंटरोगेटिव विद इंट्रांजिटिव, डिड शी क्राई लास्ट नाइट, और डज ही सिंग नाइसली। यानी हमने सिंपल क्या किया, ऑब्जेक्ट लगा दिया तो ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाया एडवर्ब लगाया तो इंट्रांजिटिव। अब हमने यहाँ पे प्रपोजिशंस लगानी है, तो शी वॉकड इन भी आ सकता है, थ्रू भी आ सकता है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं दो जल्दी से, इन एंड थ्रू, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब सही हो गया। शी वॉकड इन या थ्रू दोनों ठीक है। फिर द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। देखिए एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब कोई चीज़ सिंपल हो कि भाई ग्लास मेज पर है तो हम ऑन लगाएंगे, लेकिन अगर कोई मूविंग चीज़ आए, देखिए जंप मूविंग होती है, मैंने जंप लगाई। जब कोई मूविंग चीज़ कहीं पर आए या कोई मूविंग चीज़ कहीं पे ठहरे तो हम हमेशा ऑन टू लगाएंगे। और ख़ास तौर पर जंप के साथ याद रखें, या फिर जैसे कोई चढ़ रहा है या कोई चीज़ जंप कर रही है, जंप के लिए तो अब याद रखें कि हमेशा ऑन टू ही लगाना है। एयरप्लेन फ्लू ओवर भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है। दे सेल टू द आइलैंड, याद रखें जब हमने किसी एग्जैक्ट जगह जाना होता है, या जब जैसे आपको पता हो कि मूविंग टू द बस, या जब हमें कोई एग्जैक्टली बात पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं तो हमने टू लगाना है। ठीक है, द हाइकर क्लाइम्ड अप आएगा, ट्रैवल थ्रू आएगा, रोल्ड अक्रॉस आएगा, स्वैम अक्रॉस आएगा, रैन टूवर्ड्स आएगा, कीज ऑन द टेबल, वॉक थ्रू द फॉरेस्ट एंड फ्लोज डाउन द माउंटेन्स। तो ये ज़्यादा चीज़ें सही हैं। ओके, आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। तो दो चीज़ें दी हुई हैं, हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। दे वॉक थ्रू द पार्क सही है, बिसाइड द पार्क इतनी सही नहीं है चूँकि ज़्यादा सुटेबल थ्रू है। फिर है द बर्ड्स फ्लू ओवर द स्काई, अंडर द स्काई नहीं है, ओवर द स्काई सही है। द कार ड्रोव थ्रू द टनल, तो यहाँ पे टनल के साथ राउंड नहीं आता, थ्रू आता है कि वो सुरंग में से गुजरी। ठीक है, नेक्स्ट इज ही जम्प्ड इनटू द पूल। जब अगेन जंप है ना, और वो किसी चीज़ के अंदर जब जंप कर रहे हैं तो फिर इनटू आएगा, किसी चीज़ के ऊपर जंप कर रहे हैं तो ऑन टू आएगा। अब एक्टिव पैसिव वॉइसेस है, बहुत आसान चीज़ है। एक्टिव होता है कि जिसमें एक सब्जेक्ट यूज़ होता है और एक प्रॉपर एक तरतीब होती है। जैसे मैं खाना खाती हूँ, आई ईट अ मील। और पैसिव क्या होता है कि जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है, खाना खाया गया, खाना मुझसे खाया गया, तो इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। द शेफ प्रिपेयर्स अ डिलिशियस मील इज़ प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। ठीक है, तो यानी हमने क्या किया, जो ये ऑब्जेक्ट था ना, अ डिलिशियस मील जो ऑब्जेक्ट था ये शुरू में आ गया, और द शेफ जो कि सब्जेक्ट था वो एंड में आ गया। और यहाँ पे हमने बाय लगा दिया कि खाना पकाया गया, खाना तैयार किया गया एक शेफ के ज़रिए। ओके, तो ये आप देख लें, शी विल कंप्लीट द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय हर, समवन इज पेंटिंग द फेंस इज बीइंग। अच्छा, अब ये कुछ इसके रूल्स होते हैं। यू कैन चेक माई ग्रामर नोट्स, यू कैन चेक माई ग्रामर वीडियो इन विच आई हैव टॉट दिस लेसन कम्प्लीटली। ये मैंने आपको तफसील से बताया हुआ है। यू कैन चेक माई ग्रामर नोट्स फॉर दिस। ठीक है, एक्टिव पैसिव को समझने के लिए तो सिंपल ये है कि रिविजन करवा देते हैं हम कि समवन इज पेंटिंग द फेंस। जब यहाँ पे जब प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है तो हम बीइंग लगाते हैं। इस जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने चेंज नहीं करना। हाँ, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है कि मतलब किसके साथ आ रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, यानी कि ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया ना। द फेंस इज बीइंग, तो अगर यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती फेंसेस तो हम आर लगा देते। तो हेल्पिंग वर्ब हम चेक करते हैं कि किसके बाद आ रहा है, उसके मुताबिक हम इसको प्लूरल या सिंगुलर करेंगे। लेकिन टेंस हमने नहीं चेंज करना। समवन इज़ है यानी कि प्रेजेंट की बात हुई तो हमने इसको प्रेजेंट ही रहने देना है। इट डिपेंड्स कि इज़ एम आर में से क्या आएगा। दे हैव कैंसल द इवेंट, जब हैव होगा तो फिर अगेन
हैव ही रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग के किसके साथ आ रहा है। यहाँ पे इवेंट चूँकि सिंगुलर है तो हम हैव की बजाय हैज़ लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब इसका ये होता है कि जब इनडेफिनिट हो ना, यानी सिंपल हो, तो हम उससे पहले वॉज या वर या इज या एम लगा देते हैं अकॉर्डिंग कि क्या है। अब चूँकि यहाँ पे पास्ट सिंपल था या पास्ट इंडेफिनिट था, तो हमने यहाँ पे वॉज या वर लगाने। अब द प्रोजेक्ट हमने शुरू में लगाया है और द प्रोजेक्ट सिंगुलर होता है तो हमने यहाँ पे वॉज लगाया। The chef prepared a delicious meal, तो a delicious meal was prepared by the chef and the gardener trims the bushes। अब ये trims है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हमने एंड में हमने जो ऑब्जेक्ट था यानी द bushes उसको शुरू में लगा दिया, और bushes चूँकि प्लूरल है तो हमने यहाँ पे आर लगाया, आर ट्रिम्ड। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि पैसिव में वर्ब हर हाल में थर्ड फॉर्म ही आएगी, ये सबसे अहम चीज़ है। ओके, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। नेक्स्ट इज हमने पैसिव वॉइस को चेंज करना है। एक्टिव में द केक वॉज बेक्ड बाय मैरी, तो मैरी बेक्ड द केक। अगेन अ न्यू सॉन्ग इज बीइंग संग बाय द कोयर। द इज बीइंग है ना, तो उसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो हमने क्या बना दिया, द कोयर इज सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग। द रिपोर्ट हैज बीन रिटन बाय द मैनेजर हैज रिटन द रिपोर्ट। द केक वॉज बेक्ड बाय मैरी, अगेन मैरी बेक्ड द केक, ये दो बार आए हुए तो हम भी इसको दो बार कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, द केक वॉज बेक्ड बाय मैरी, फर्स्ट एंड फोर आर द सेम। द केक अ न्यू द केक इज़ बेक्ड बाय मैरी, हमने दो बार कर दिया, इसको एक दफ़ा हटा देते हैं, ये हमने गलती से दो बार कर दिया है। ठीक है, तो हम इसको एक दफ़ा हटा देते हैं, तो उसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर आर द सेम, तो हमने भी इसको कर दिया। अब वो तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए कोई कंफ्यूज ना हो। अ न्यू सॉन्ग इज बीइंग संग बाय द कोयर सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग। तो रिपोर्ट हैज़ बीन रिटन बाय द मैनेजर हैज़ रिटन द रिपोर्ट। और फिर एंड में क्या है, द डोर वॉज ओपन बाय जॉन, सो जॉन ओपन द डोर। ओके, अब हमने बताना है कि जो सेंटेंसेस हैं वो क्या एक्टिव है या पैसिव है। फर्स्ट एक्टिव है, क्यों, चूँकि यहाँ पे बाय नहीं आ रहा, बाय सबसे बड़ी पहचान है कि ये पैसिव है। दूसरे में बाय आ रहा है तो फिर पैसिव, तीसरे में नहीं आ रहा तो एक्टिव, चौथे में बाय आ रहा है तो पैसिव, एंड सो ऑन। ठीक है, सिंपल 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 चीज़ें आप इसको देख लें। फिर है कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द कन्वेंशंस ऑफ पोलाइटनेस एंड ग्रैटिट्यूड्स। तो हमने पोलाइटनेस एंड ग्रैटिट्यूड्स लगाने हैं, इसको हम अभी देख लेते हैं। और इसको आप थैंक यू, आप इसमें कुछ भी लगा लें, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑर्डर। और इसको लेट मी चेक। ओके, सो इसको फ़िलहाल हम रहने देते हैं। इसको इंशाल्लाह इन माय एनी अदर वीडियो आई विल डिस्कस इट, बिकॉज़ आई डोंट हैव कि ये किससे रिलेटेड थी। सो इसको हम बाद में, तो उसको फ़िलहाल हम रहने देते हैं, ज़रूरत इतनी नहीं है। समरी राइटिंग आ गई आगे कि वैसे सिंपल है कि आप इसको सिंपल कर सकते हैं ना कि थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, यानी किसी भी बात के लिए थैंक यू लगा दें, बट लेट मी चेक कि वो क्या थी एक्सरसाइज। अगर वो इम्पोर्टेंट हुई तो आपको करवा दूँगी, वरना आप उसको खुद भी देख सकते हैं, ऐसे कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। समरी राइटिंग देख लेते हैं, इसमें उन्होंने कुछ बातें बताई हुई हैं कि आपने टोन बतानी है, थीम बतानी है, मेन आइडिया बताना है, पोएम का पिन पॉइंट करनी है, फिगर्स ऑफ स्पीच को, स्पेशली मेटाफर, सिंबल्स एंड इमोशंस जो उसमें बताए गए हैं। फिर हमने बताना है कि मेलैंकोलिक है, मीन्स मेलैंकोलिक कहते हैं उदासी वाली है और या खुशी वाली है, क्या टोन है। सो किस चीज़ को हमने बताना है, हमने बताना है एक पोएम यहाँ पे दी गई है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इंतहाई मशहूर पोएम है और बहुत ही खूबसूरत पोएम है, इसको हमें डिस्कस करना है। ख़ास तौर पर आपसे पूछा गया है समरी का, तो हम यहाँ पे समरी तो लिख दें, लेकिन पहले हमें पोएम समझेंगे तो हम समरी करेंगे ना। तो हम इस पोएम को थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर हम उसकी एंड में समरी करेंगे। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Inshallah, I will make a separate video of this poem, The Road Not Taken, because this is a very beautiful poem, and inshallah, I will cover the stanza question answers and the paraphrasing as well in that video. Inshallah, so please stay tuned. Stanza 1, two roads diverged in a yellow wood. जर्द जंगल में दो रास्ते जुदा हुए. And sorry, I could not travel both. और अफसोस कि मैं दोनों पर नहीं जा सका. And be one traveler, long I stood. एक मुसाफिर होते हुए मैं देर तक खड़ा रहा. And looked down one as far as I could. और एक रास्ते को जितना देख सका देखा. To where it bent in the undergrowth, कि जहाँ वो झाड़ियों में मुड़ता था. डाइवर्स मीन्स कि जब कोई रास्ता दो रास्तों में तकसीम हो, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. येलो वुड मीन्स जर्द पत्तों वाला जंगल. ट्रैवलर, इसको भी हम या तो कर लेते हैं, इसको भी हम पूरा ख़त्म कर देते हैं, अब ठीक लग रहा है.
ट्रेवलर अ पर्सन हु ट्रैवल यानी मुसाफिर। अंडर ग्रोथ होता है कि झाड़ियाँ या नीचे उगी हुई घनी घास, के जो नीचे कोई घनी घास हो ना उसे कहते हैं अंडर ग्रोथ। स्टैंजा 2, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, फिर मैंने दूसरा चुना जो वैसा ही फिर मैंने दूसरा रास्ता चुना जो कि वैसा ही खूबसूरत था। इसकी लेट मी चेक द अलाइनमेंट। अब सही है, ठीक है। फिर मैंने दूसरा चुना जो वैसा ही खूबसूरत था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और कुछ शायद कुछ ज़्यादा ही हक रखता था। कैसा हक कि मुझ पर चला जाए, यानी उस रास्ते पर चला जाए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वो घास से भरा था और कम चुना गया था, उस पर कम लोग चले थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, अगरचे गुजरने वालों ने हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, दोनों को तकरीबन एक सा बना दिया था। फेयर यानी ब्यूटीफुल, या बिल्कुल वैसा ही मुसावी यानी कि बराबर बराबर। क्लेम हक या दावा। जस्टिफिकेशन ग्रासी मीन्स घास से भरा हुआ। वांटेड व्यूअर हैड नॉट बीन यूज्ड मच, जिस पर कम चला गया हो। एंड वर्न यानी पुराना हो जाना। यूज और वॉकड ऑन ऑफन, घिसा हुआ होना, पुराना हुआ हो जाना। जैसे हम कहते हैं ना ये तो वर्न क्लोथ्स है, वर्न क्लोथ्स यानी पहने हुए हैं कपड़े, तो पहने हुए कपड़े हैं ना, पुराने कपड़े ये वाले। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लिए, और सुबह दोनों बराबर पड़े थे। Loud smile. In leaves no step had trodden black, पत्तों से ढके जिन्हें किसी कदम ने स्याह न किया था। Oh, I kept the first for another day. Oh, मैंने पहला रास्ता किसी और दिन के लिए रख छोड़ा। Yet knowing how way leads on to way, लेकिन जानता था कि एक रास्ता दूसरे से जुड़ जाता है। I doubted if I should ever come back. मुझे शक था कि मैं कभी वापस आ सकूंगा, यानी मुझे पता था कि मुझे शक था कि शायद ही मैं कभी वापस आ सकूं। डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे हैं। ट्रॉडन मीन्स रोंदा गया होना, स्टेप्ड ऑन कुचला जाना, जैसे कहते हैं ना कुचला जाना। केट मतलब सेव या महफूज रखना। डाउटेड मतलब शक करना। एंड वे लीड्स ऑन टू वे, यानी एक रास्ता दूसरे की तरफ ले जाता है। स्टैंजा 4, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं ये बात एक आह के साथ सुनाऊंगा। ठीक है, कौन सी बात, लेट मी, अभी हम इसको देख लेते हैं, इसको सही कर लूँ कि मैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं ये बात एक आह के साथ सुनाऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, किसी दूर ज़माने में। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई, जंगल में दो रास्ते जुदा हुए और मैं। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो चुना जिस पर कम लोग चले। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़र्क बन गया। साय मतलब गहरी सांस, हैंस मतलब उस वक्त से या मुस्तकबिल में। लेस ट्रैवल जिस पर कम लोग चले, डिफरेंस मतलब फ़र्क। अब इसकी समरी करते हैं कि एक तो हम सिंपल समरी कर लेते हैं और फिर एक हम समरी करते हैं जैसा कि कहा गया था ऊपर, हमें कहा गया है आपकी बुक में। एक होती है सिंपल समरी, ये यानी कि जो भी पोइम है उसमें से जो उस पोइम में जो बातें कही गई हैं उनके सारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम समरी में लिख लें। तो सिंपल समरी क्या है? द पोइम इज अबाउट अ मैन हु कम्स टू अ पॉइंटेड लाइफ वेयर ही मस्ट मेक अ डिफिकल्ट चॉइस सिंबलाइज्ड बाय टू paths in a forest. He cannot take both, so he stops and thinks carefully. One path seems slightly less used, but in reality both are almost the same. He chooses one knowing he probably won't get the chance to return and try the other. Later in life he imagines looking back on this decision and saying it made a big difference. The poem shows that life is full of choices, and even when options seem equal, we give meaning to the one we choose and live with its consequences. यानी जो रास्ता हम चुनते हैं वो रास्ता जब हम चल पड़ते हैं ना तो एक के बाद एक के बाद एक यानी कि एक के बाद एक रास्ता खुलता चला जाता है। यानी हमें वापस आना मुश्किल होता है कि जिस राह को छोड़ा था उस राह को अपनाएं, और फिर हमें अपनी चॉइसेस के कंसिक्वेंसेस भुगतना होते हैं, तो हमें अपनी चॉइसेस में केयरफुल होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो समरी उस तरीके से लिखना जो हमें यहाँ पे कहा गया है, इधर जो हमने शुरू में देखा था कि लिटरेरी डिवाइसेस, मेटाफर्स, सिंबल्स बताएं, स्टैंजा बाय स्टैंजा करें, राइमिंग स्कीम बताएं, हर चीज़ बताएं। तो उस लिहाज से जब हम उस लिहाज से करेंगे तो हम फिर देख लेते हैं कि समरी ऑफ रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट अकॉर्डिंग टू समरी राइटिंग स्किल्स, जो आपको कहा गया उसके बारे में।
This poem is about a man who reaches a point in life where he has to make an important decision. He stands in a forest where two roads go in different directions. These roads are symbols of different life choices. He feels, यानी कि हमने इसको साथ साथ बताना है कि पोइट का इससे क्या मतलब है. तो जो दो रास्ते हैं इसका मतलब है जिंदगी की choices. He feels sad because he can only choose one path, not both. After thinking carefully, he picks one road which looks a little less used, but later he realizes both were almost the same. Each part or stanza of the poem shows his thoughts. In the beginning, he feels confused and thoughtful. In the middle, he makes a choice. At the end, he imagines himself in the future, saying that this choice made a big difference in his life. The poet uses simple language, a clear rhyme pattern A B A B, and smooth rhythm to make the poem flow gently, like his thinking process. सो इसकी हम राइमिंग स्कीम खुद भी देखते हैं. देखिए, वुड ए बोथ बी स्टूड ए कुड अगेन ए एंड ग्रोथ इज अगेन बी. तो ए बी. ठीक है. सो अब आपको समझ आ गया कि किस तरह ए बी कहा गया हमने. तो इसका सिंपल पैटर्न उसने यूज़ किया है जो है ए बी एंड स्मूथ रिदम टू मेक द पोएम फ्लो जेंटली like his thinking process. The poet uses metaphors and symbols like the road to represent life's choices and shows how hard it is to make decisions. The tone of the poem is calm, thoughtful, and a little sad, as the man wonders what might have happened if he had chosen the other road. The main message of the poem is that life is full of choices and we must choose carefully. We often look back on our decisions and feel they were important, even if the options seem the same at the time. Okay, so ये सारी बातें हैं and I hope that you would understand this whole exercise. So inshallah I hope कि आपको समझ आई होगी. So अस्सलाम वालेकुम.